السلام علیکم خواتین و حضرات، پیش خدمت ہے حسب حال آپ کا میزبان جنید سلیم، شعبے میرا ساتھ دے رہی ہے ناجیہ بیگھر، ہم سب کو بہت عزیزی السلام علیکم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کل ہر طرف ایک ہی شخصیت کا شور و غوغا ہے، ایک ہی ہستی کے مختلف پہلوؤں پر گفتگو ہو رہی ہے، ڈسکشنیں ہو رہی ہیں، اسی ہستی کے ایک ایک زاویے پر تعریف اور تنقید ہو رہی ہے، اسی شخصیت کے چاروں طرف ڈنکے بج رہے ہیں، اور وہ ہیں جناب محترم بکرا صاحب۔ ناظرین، یہ جو بھائی صاحب ہیں بکرا صاحب، ان کے بریک فاسٹ اور لنچ اور ڈنر کا اس قدر خیال رکھا جا رہا ہے پنکچویلٹی کے ساتھ، اور ان کی اتنی خدمت کر رہے ہیں گھر والے اور بچے کہ پورے ملک کے جو شوہر ہیں وہ حسرت بھری نگاہوں سے اس کو دیکھ رہے ہیں اور یہ سوچ رہے ہیں کہ کاش ہم بکرے ہی ہوتے۔ اور وہ جو اس نے ذبح ہونا ہے، ناظرین، یہ جو سوچ رہے ہیں کہ کاش ہم بکرے ہی ہوتے ہیں، ان لوگوں میں نہیں ہوں۔ ایسے تو میں روزانہ ہی یبا ہوتا ہوں، بکرا تو ایک دفعہ یبا ہوتا ہے، اور اس کو تو یہ ایڈوانٹیج بھی حاصل ہے کہ وہ یبا ہوتے ہوئے آواز تو نکال لیتا نا، میں تو خاموشی سے ہی مارا جاتا ہوں روزانہ۔ مجھے کیا برا تھا مرنا اگر ایک بار ہوتا۔ عید قربان میں ایک دن رہ گیا، جگہ جگہ چھریاں تیز ہونے لگی۔ شاباش، یہ کیوں جگہ جگہ پہ چھریاں تیز کر رہے ہیں؟ ایک ہی جگہ پہ کتنی ساری تیز چھریاں پڑی ہوئی ہیں، وہ جا کے لے لیں۔ وزارت خزانہ کے پاس تھوڑی چھریاں ہیں، اتنی تیز چھریاں، گیس کی چھری، بجلی کی چھری، پیٹرول کی چھری، ٹیکس کی چھری، وہاں سے ہر ورائٹی کی چھری ہے، وہ پکڑ کے بکرا لال کر کے واپس کر دے، لاؤ بھائی۔ ان کے پاس تو ہر قسم کی چھریاں ہیں نا، کھال اتارنے والی چھری، پٹھی چھری، کھنڈ چھری، بگدے ہیں، چھوٹی چھریاں ہیں، سری اتارنے والی چھری ہے، پاوے اتارنے والی چھری، ہر قسم کی چھریاں موجود ہیں ان کے پاس، اور ان کے بگدے چھریوں کو مڈی کی ضرورت نہیں پڑتی، یہ تو جہاں مرضی لمحے پا کے لال کر دیتے ہیں۔ آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ انتخابات 2013 میں ہوں گے، پیپلز پارٹی کے کارکن عوام سے رابطے تیز کریں۔ لو، پچھلی خبر میں چھریاں تیز ہو رہی تھی، اس خبر میں رابطے تیز ہو رہے۔ ایک ہی بات ہے یار، مگر یار یرداری صاحب نے تو کہا کہ سیاسی رابطے تیز کرے۔ حضور ذرا وضاحت کر دے کہ میں سیاسی رابطوں کی بات کر رہا ہوں، یہ نہ ہو کہ کارکن جا کے دروازے کھڑکا کے کہیں گے 1.5 سال رہ گیا جناب، سیل لگ گئی ہے، سستی فائل کلیئر کرا لو، منڈا سستا بھرتی کرا لو، اور ادھی قیمت سی این جی اسٹیشن دا لائسنس لے لو، بغیر کام کیتی ہوئے سرکاری بل پاس کرا لو، 1.5 سال رہ گیا کوئی بھی کام کرا لو۔ اس لیے یہ وضاحت کر دیں حضور، آپ کا مطلب تو اور ہے نا کہ سیاسی رابطے جو ہیں وہ تیز کر لیں۔ برطانوی جیل میں پاکستانی قیدیوں کی سلمان بٹ اور محمد آصف کے ساتھ بدتمیزی، ملک کو بدنام کرنے کے تانے دینے لگے۔ یہی ہم کل بات کر رہے تھے نا، یقیناً یہ لوگ مجرم ہیں اور ہر انداز میں ان کی مذمت بھی کی جانی چاہیے، لیکن تم یہ دیکھو کہ ان کو تانے دے کون رہا ہے، جو خود فراڈ یا دھوکہ دہی کے الزام میں جیل کاٹ رہے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، یا تو ہے نا کہ آپ اندر جیل کسی ختم پہ آئے ہوئے ہیں، بھئی آپ بھی کچھ جرم کر کے ہی اندر آئے ہوئے ہیں، دسو، ہائے ہائے ہائے۔ اور انگلینڈ میں تو سارے فراڈی ہی جیل میں بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی ویزے کا فراڈ کر کے آیا ہوتا ہے، کوئی وہاں کا بینک فراڈ میں اندر ہوا ہوتا ہے، کوئی کریڈٹ کارڈ کے فراڈ میں اندر ہوا ہوتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، چھاج تو بولے، چھلنی بھی بولے، جس میں 100 چھید۔ بہت بری عادت یہ عوام ہماری میں پھیلتی جا رہی ہے۔ اکثر دیکھنے میں آتا ہے اب تو کہ اتنے بڑے ٹھڈ والا بندہ کو 5000 ٹن چینی اندر ذخیرہ کی ہوتی ہے، اور مزدور سے کہہ رہا ہوتا ہے اے حق لازی کر کے کھا دے، مرنا نہیں یاد۔ واقعی یہ بہت بڑا عالمی ہے ہمارا، بہت بڑا عالمی ہے۔ بندہ پوچھے مزدور نے مٹی میں دفن ہونا ہے تو تم نے چینی میں دفن ہونا ہے۔ ہو گئی ایک بات، بس چھوڑ دو ان کی جان، ان کو سزا مل گئی، اب بیچاروں کو جرم ثابت ہو گیا، اگے نصیحت پکڑو، سارے ان کے پیچھے پڑ گئے، ہر بندے ہی، ہر فراڈی، آپ بھی ان کو باتیں کر رہے ہیں۔ بالکل۔
एएनपी के सेनेटर जाहिद खान ने कहा है कि नेशनल हाईवे में खरबों रुपए के घपले हो रहे हैं। बहुत अच्छे। एएनपी के जाहिद खान साहब जी, तो सरकार जो एएनपी को मिली है वजारत, उसका क्या बना है? और उनकी रेलवे जबरदस्त तरक्की कर रही है। तरक्की याफ्ता मुल्कों से धड़ाधड़ वफूद आ रहे हैं देखने के लिए। बगैर मुल्की वफूद नहीं आ रहे, असारे कदीमा वाले आ रहे हैं देखने के लिए कि यहाँ रेलवे होती थी। नहीं, यहाँ थोड़ा सा मोबाइल रुड़ा हुआ है। गुजरी है जी, यहाँ से गाड़ी गुजरी। ये देखो यार, ये साथ उधर भी और इधर भी पहिए का भी निशान है, बिल्कुल ठीक है। कर दो फोन, मिल गई है, रेलवे मिल गई है। बल्ले बल्ले बल्ले, अजीब ही सिस्टम चल पड़ा है। एक बंदा अपनी करप्शन छुपाने के लिए दूसरे की करप्शन का रौला डाल रही है। इसी पे शायर ने कहा है ना जनाब, बोका इसका पाटा हुआ है, ये नलका ना गेड़ तू, तुझको पर आई क्या पड़ी रेलवे निबेड़ तू। अमेरिका ड्रोन हमलों की पॉलिसी में तब्दीली पर रजामंद, पाकिस्तान को हमले की पेश की इत्तला दी जाएगी। पेश की इत्तला जरूर दी जाएगी। खबर के मुताबिक जो हतमी फैसला है वो CIA करेगी, यानी हमें सिर्फ इत्तला दे के वो मारेंगे और मारेंगे जरूर। और इस फैसले पर यानी मैं सुन रहा था कि हुकूमत पाकिस्तान बहुत खुश नजर आ रही है इस फैसले पर। इसमें खुशी वाली कौन सी बात है? ये तो ज्यादा तकलीफ दे बात है। हाँ, मैं तुम्हें सही कह रहा हूँ, बेध्याने को बंदा चपेट मार जाए ना तो बंदा करके तो ऐसे करके गुजर जाता है। और कुजाए को बंदे को कहा जाए कि भाई जी आपको थप्पड़ मारना, जरा मुंह ऊंचा करे थोड़ा सा जरा, और बस इधर सजे करो जरा, इथे रख, बिल्कुल ठीक है, ठहर जाओ 1 मिनट। इतनी देर बंदा ये ज्यादा तकलीफ दे अमल है या वो बेध्याने खाने वाला अमल तकलीफ दे? ये तो अमेरिका ने हमारे साथ ड्रोन यसुपंजी शुरू कर दिया। हद हो गई है वैसे यार, हम लोगों को समझ नहीं आती अमेरिका हमारे साथ कर क्या रहा है। समझ आ जाए फिर मसला ही क्या है बाकी। बस यार, असल में वो अंग्रेजी में कह रहे होते हैं ना तो हमें समझ नहीं आ रही होती। क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया में ख्वाजा सराहों की क्रिकेट टीम ने मर्दों की टीम को 72 रन से हरा दिया। हाय सदके जाओ मैं अपनी गुगलियां दे, साडी बारी पहली बॉलिंग दी आई है। मैं बॉलिंग कराने वास्ते गई हां अपने पॉइंट ते, तो स्टेडियम चो किसी उतरे ने टेप लाती, गेंद फड़ के मैं जो फिर 50 कदम तो नचदी आई हां ते उतरा बैट्समैन बल्ला सुट के ते वेला देन लग पे। मैं कहा हाय वेला ही देन लग पे, को वेला ते वे चढ़ गया मैनू गुस्सा। मैं स्टार्ट लिया ते गेंद में मारिया सीधा ओदे पैड ते दलील को करदा, हाय मैं मर गया। मैं कहूं पता लगा ही था। मैं अंपायर नु अपील कीती है, हाउ इज दैट? अंपायर ने उंगल चुकी ते मैं अंपायर नाल लड़ पई। मैं कह जलीला साडे ते सारा जमाना उंगलां चुकदा, हुण अंपायर भी उंगलां चुकणगे। ते पिछों मेरे गुरु ने दसिया कि शमीम जलीले ओ ते आउट देन दे आ, तेनू नहीं छेड़न दे आ। बस 10 ओवर च मैं सारी टीम सुट दी। अड़िए जो फिर साडी बैटिंग दी वारी आई है तो मैं लत्तां ते पैड ते गिट्टियां ते घुंघरू बन्ने ने ते लक ते दुपट्टा मैं भुल ही गई। बल्ला फड़ के जो मैं छन छन कर दी बेचल गई है तो सारा स्टेडियम खलो गया ते रौला पाना शुरू कर दिता ने, वे सोनिया अखां वालिया मैं रह गई तेरे ते। मैं सोचा शमीम इन्ने बंदियां दी फरमाइश मोड़ी है तो कमाई च बरकत नहीं रही। बस फिर मैं बल्ला सुट के ते नचना शुरू होई हां। अंपायर ढोल गई ते बह गया ते लेग अंपायर बाजे ते आ गए। एहो जिहा नचिए जुनैद साहब कि उन्हां दी ते 200 स्कोर सी ते मैनू 7000 होया। नाज़रीन यहाँ मिले एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक। यार जुनैद, अभी मैंने टीवी के ऊपर हज का मंजर देखा।
यार रूह खुश हो जाती है देख। एक ही आवाज, एक ही लिबास। हाय हाय हाय, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। अच्छा, तुम्हें इस इबादत का, हज की इबादत का सबसे खूबसूरत पहलू कौन सा लगता? यार मैं तो ये जब सोचता हूँ ना कि जब इंसान उधर खाना काबा जब पहली नजर उस पर पड़ती है, देखो ना यार, पूरी दुनिया से लोग जो हैं उधर को मुंह करके पूछ रहे होते हैं कि किधर है जी खाना काबा, किधर है, इधर है। वहां पे जाए नमाज बिछाया और पढ़नी शुरू कर दी नमाज। अब जिधर सजदा हो रहा है सारी दुनिया से, आप जाके वो अपनी आंखों से सामने देख लेते हैं। ओए होए होए होए, इंसान के होश और उसान खता हो जाते हैं जब पहली नजर खाना काबा पे पड़ती है। और सुना है जब पहली नजर खाने काबे पे पड़ती है और आप जो भी दुआ मांगे वो कबूलियत की घड़ी होती है, वो दुआ कबूल होती है। और दूसरा, मुझे वहां पे जो टिंड कराते हैं ना हाजी जाके, ओए होए होए, देखो जरा अल्लाह ताला ने किस चीज की कुर्बानी मांगी। जबरदस्त। इधर बंदा कितना कॉन्शियस होता है अपने बालों की तरफ से, बार बार शीशे को, अच्छा जिस वो थोड़े होते जाते हैं त्यों त्यों ज्यादा फिक्र बढ़ती जाती है, बंदा उनको संभाल रहा होता है। बिल्कुल। और अल्लाह ताला को पता है कि ये यहाँ से बड़ा कंफ्यूज है बंदा, खालिक है ना, कि बाल मेरे ना खराब हो, काम ना हो जाए। अल्लाह पाक ने दाहिरा बनाया हुआ दुनिया वालों को। खालिक से ज्यादा अपनी मखलूक को कौन जान सकता है? उसको पता है कि ये इंसान की, मेरी मखलूक की कमजोरी थी और रहेगी। तो ना 1400 साल पहले ये जब हुक्म हुआ, उससे लेकर आज तक बाल जो है इंसान के लिए कमजोरी है। हुस्न के हवाले से, ब्यूटी के हवाले से इंसान कॉन्शियस रहता है और उसकी कुर्बानी मांगी। इंसान की सिर्फ आकड़ खत्म करने के लिए, वो जो अंदर एक अपने इंसान का तकब्बर है ना कि मैं हूँ, कैसी नफी की अल्लाह ताला ने उसकी। ओए होए होए। सर, आपको क्या चीज इंस्पायर करती है हज के हवाले से? मुझे जो इस इबादत का खूबसूरत तरीन पहलू है, जो सबसे ज्यादा सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है मेरे लिए, वो ये है कि बीइंग द मेंबर ऑफ उम्मत मुस्लिमा, उम्मत मुस्लिमा का फर्द होने का, एक रुकन होने का, अदना सा रुकन होने का जो एहसास है इस सारी इबादत के दौरान, वो इंसान को बहुत ज्यादा कुव्वत और तवानाई देता है। और जब लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं बुलंद होती हैं, आपके इर्द गिर्द यानी लाखों इंसान मौजूद होते हैं, इंसानों का समंदर मौजूद होता है और उसमें हर कौमियत के लोग मौजूद होते हैं, ये बड़ी जबरदस्त तवानाई का एक जरिया है। मैं ये समझता हूँ, ये जो कुछ अरसा पहले हमारे यहाँ भी एक रॉ चली थी कि जनाब सबसे पहले पाकिस्तान होने में मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन इसके पीछे जो एक साइकी थी, जो नफी थी, उम्मत वाहिदा, उम्मत मुस्लिमा के तसव्वुर की जो नफी है, वो बहुत खौफनाक तसव्वुर था। और असल में हमें उम्मत मुस्लिमा के तसव्वुर को ना अपनी कुव्वत बनाना चाहिए, अपनी ताकत बनाना चाहिए। और साथ ये कहा जाता था जी कि कौन सी उम्मत मुसलमान, फलां मुसलमान कौम पे या मुल्क पे ये आफत आई थी तो कौन पहुंचा था, फलां मुसलमान मुल्क में ये हुआ था तो कौन पहुंचा था। अजीब सी बात तो ज्यादा बदकिस्मती की बात है कि उम्मत मुस्लिमा को हमने सरबराहान मुमलिकत समझ लिया है, हमने बादशाहों को उम्मत मुस्लिमा समझ लिया है, हमने मुख्तलिफ इस्लामी मुल्कों के सदूर और वज़राए आज़म को उम्मत मुस्लिमा समझ लिया। उम्मत मुस्लिमा जो 1 अरब से ज्यादा जो कलमा गो मुसलमान है, वो उम्मत मुस्लिमा है, जिनके सीनों में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह धड़कता है, वो उम्मत मुस्लिमा है। सदर या वजीर आजम का नाम, ये जो बातें की जाती हैं, ये तो सदूर और वज़राए आजम ने की ना, बादशाहों ने की। इसमें आज भी तुम देख लो, किसी इस्लामी मुल्क में अवाम पर आफत आती है तो दूसरे इस्लामी मुल्क के जो मुसलमान भाई हैं, उनके दिल उसी तरह धड़कते, वो उसी तरह कर्ब और तकलीफ महसूस करते हैं जिस तरह उस मुल्क के लोग। ये है उम्मत मुस्लिमा। मगर यार पाजनैद इस उम्मत मुसलमा का जो हिस्सा पाकिस्तानी है, उनकी तो हर साल वही खबरें टीवी पे चल रही होती है, किसी को रिहाइश नहीं मिली, किसी को खाना नहीं मिल रहा, कोई बेचारा बड़ा दूर कहीं सुटा दिया गया है। ये क्या यार होता है इस साल भी तुम देख लो, वही जो हमेशा पाकिस्तानियों के साथ सलूक होता है, इस साल भी वही हुआ है। मेरा तो ख्याल है कि पाकिस्तानी हुज्जाज के लिए कोई यानी परचम और वो टैग लगाने की जरूरत नहीं है। जो सबसे ज्यादा परेशान हाल हाजी है या गिरोह है, जो कभी एक जगह से दूसरी जगह मदद के लिए जा रहा है और उसका कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई उससे उसकी तकलीफ या मुश्किल पूछने वाला नहीं है, समझ लो वो पाकिस्तानी हाजी है। या फिर वापसी पर एयरपोर्ट पे किसी का बैग या वो आबे जमजम वाला गैलन गुआच जाए तो वो PIA का मुसाफिर है। बिल्कुल। में लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक। शुक्र अजीज साहब, आज आप अजीजी एल्बम ले आए हैं, बहुत डिमांड है व्यूअर्स की तरफ से। ऐसी वैसी डिमांड
लोगों को अब तो मैं सड़कों पर तस्वीरें बना बना के दिखाता रहा हूं। मुझे कहते हैं ये खुदा के लिए इधर ही बना दो तस्वीर, प्रोग्राम में अब तुम बनाते ही नहीं है ये मैंने कहा भाई जी मैं क्या कर सकता हूँ, वो जो प्रोग्राम का मालिक है वो ही नहीं बनाने देता। लो जी, सबसे पहले मैं एक वीडियो पेश कर रहा हूँ सजा याफ्ता पाकिस्तानी क्रिकेटरों की इंग्लैंड की जेल में पहले दिन की मसरूफियात। ओहो। सर देखिए तो सही निशाना किधर लगा रहे हैं। ओ मजर मजीद। ऐसे लोगों से पहले ही दूर रहना था ना। अब आपको वीडियो पेश कर रहा हूं क्रिकेटर मोहम्मद आसिफ की गिरफ्तारी पर वीना मलक इंतहाई अफसोस का इजहार करते हुए। वीना जी, मोहम्मद आसिफ गिरफ्तार हो गया, पता है आपको? जी मोहम्मद आसिफ गिरफ्तार हो गया जी, मोहम्मद आसिफ गिरफ्तार हो गया। मुकर्रर मुकर्रर आसिफ गिरफ्तार हो गए। मुकर्रर 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 मुकर्रर। और वीना जी बुरे वक्त से डरे। नाजरीन, अब वीडियो पेश कर रहा हूं इम्तहानात में शानदार कंप्यूटर सिस्टम मुतारफ होने के बाद इंटरमीडिएट के स्टूडेंट इम्तिहानात की तैयारी करते हुए। ओह। ये क्या कर रहे हैं? अच्छा, एहतजाज, ये तैयारी हो रही है। जलसे जुलूसों की तैयारी है। ओ तेरी इन बेचारों ने कभी इन चीजों की शक्ल तक नहीं देखी थी। बिल्कुल बिल्कुल। अब आपको वीडियो पेश कर रहा हूं एक मुअज़्ज़ज़ शहरी ईद के रोज उस दिन की मुअज़्ज़ज़ तरीन शख्सियत कसाई का इंतजार करते हुए। ओह। जनाब, अब आपको फिल्म पेश कर रहा हूं वफाकी वजीर रेलवे गुलाम अहमद बलोर। मैं हैरान हो रहा था कि अभी तक बलोर साहब नहीं आए इसकी एल्बम में। रेलवे को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए दिन रात एक करते हुए। अच्छा, इतनी मेहनत करनी पड़ रही है बलोर साहब को रिवर्स गियर लगाने के लिए। लो जनाब, अब वीडियो पेश कर रहा हूं हालिया जलसों के अंदाज को देखते हुए एक सियासतदान अपने आइंदा जलसे के लिए एक तकरीर तैयार करते हुए। ओह। नहीं।
اگر یہ مقابلہ شروع ہو گیا تو سب سے بڑا جلسہ مشرف صاحب کا ہوگا ڈیفینیٹلی. ہونٹوں پہ کبھی ان کے میرا نام ہی آئے, میرا نام ہی آئے, آئے تو صحیح برسرے الزام ہی آئے, ہونٹوں پہ کبھی ان کے میرا نام ہی آئے, میرا نام ہی آئے. مجھے لینا ایک چھوٹا سا وقفہ. لاکھ لاکھ روپے کی تصویر تمہیں میں دیکھو روپیے میں دکھا دیں. یار تمہیں اتنی جلدی کیا ہے فریزر خریدنے کی؟ 2-4 دن ٹھہر کے خرید لینا. سکوٹر کھڑا کرنا ہے فریزر میں. یار میں نے نہیں خریدنا, میرے ایک دوست نے خریدنا ہے, وہ مجھے کچھ 56 میسج کر چکا ہے. فون پہ بھی اس نے مجھے صبح کہا کہ تم ادھر جا رہے ہو چینل کی طرف ہے, تو ادھر سے جاتے ہوئے پتہ کر کے چینل پہ جانا فریزر جو اچھا ہے وہ کتنے کا ہے. تو تم ایکسپرٹ ہو فریزر خریدنے میں, تمہیں کیا پتا؟ تم سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ پائی جی میں ادھر آ رہا تھا اس لیے اس نے, یار میں کتنے پھنس گیا ہوں خدا کے واسطے. ویسے عزیز صاحب اس کو اتنی جلدی کیا فریزر خریدنے کی؟ بس مجھے کہہ رہا کہ عید سے پہلے یہ صاحب خریدنا ہے وہ فریزر. اچھا میں بتاتا ہوں کیا وجہ ہوگی. اس نے صرف عید سے پہلے اس لیے اصرار کر رہا ہے فریزر خریدنے پر کہ اس نے گوشت سٹور کرنا ہے. لو یار یہ بڑا سمجھدار بندہ کون ہے یہ؟ جنید لو جی بالکل تم نے ٹھیک بات کیا, اس نے یہی کرنا ہے. کیونکہ وہ مجھے کہہ رہا تھا, میں نے اسے کہا کہ عید کے بعد خرید لینا, کہہ رہا تھا نہیں ریٹ بڑھ جائے گا فریزر کا. مجھے یاد آ گیا اس نے تو 4 بکرے اپنے دروازے پہ کھڑے کیے ہوئے. تو 4 کے 4 اس نے فریزر میں اپنے لیے سٹور کر لینے. ایسے ہی کرتے ہیں اور کیا کرتے ہیں. نہیں تم دیکھ لو کہ عید الاضحیٰ سے پہلے ہمیشہ فریزرز کی فروخت میں کئی گنا اضافہ ہو جاتا ہے. ہاں لوگ اسی لیے خریدتے ہیں تڑا تڑ. اچھا اتنے کا بکرا نہیں ہوتا جتنے کا فریزر لے آتے ہیں. اور جن لوگوں کے پاس آلریڈی فریزر ہوتا ہے وہ فریزر عید سے پہلے خالی کر دیتے ہیں. پانی والی بوتلیں, وہ پیاز کٹا ہوا یا تھوم کٹا ہوا جو کچھ رکھا ہوتا ہے نکال کے اسے اچھی طرح ٹاکی مار کے کلیئر کر دیتے ہیں. ایک حد تک تو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ چونکہ عید الاضحیٰ ہے, بکرے کی قربانی کرنی ہے, گائے کی قربانی کرنی ہے, تو گوشت گھر میں ڈیفینیٹلی ہوگا, تو کچھ دن تک گوشت پک سکتا ہے. لیکن کبھی ویسے تم غور کرو, ہمارا یہ جو گوشت کی ہرس ہے یہ عید پر زیادہ بڑی ہوئی نہیں محسوس ہوتی اس قدر, یعنی ہم نے گوشت کو اپنے اوپر سوار کر لی ہے. اب صرف گوشت کی ہرس نہیں, ویسے ہی ہم لالچی ہو گئے ہوئے ہیں. ظاہر ہے قوم ساری میں اب لالچ جتنی پائی جاتی ہے اللہ ہمیں معاف کر دے. لالچ یہ ہوتی ہے نا جی کہ یہ ہم نے اب کیا گوشت کس لیے لوگوں میں بانٹ دیں جی, غریبوں میں. یہ اپنے ہاں فری کرتے ہیں, اور جو ہم جا کے روزانہ وہاں سے 700-800 کا گوشت خریدتے ہیں وہ ہولی ہولی یہی کھایا کریں گے. نہیں اپنے, یعنی ظاہر ہے اس کا تیسرا حصہ آپ کے اپنے استعمال کے لیے ہوگا, لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے اس کو ایک مذہبی فریضے سے زیادہ ایک بکر عید کو یا عید الاضحیٰ کو پہلے بکر عید اور اب گوشت کی عید سمجھ لی ہے. ہر بات میں گوشت, آپ کو باربیکیو کی تیاریاں, فریزر صاف کیے جا رہے ہیں, ڈشیں پکائی جا رہی ہیں, تو ایک مذہبی فریضہ کہیں پیچھے رہ گیا ہمیں محسوس ہوتا ہے, اور گوشت ہمارے اعصاب پہ سوار ہوا. ہاں اس عید پہ تو لوگ گوشت تو گوشت ہی ہوئے ہوتے ہیں. تم نے دیکھا نہیں کہ عید کے 2 ہفتے تک کسائی محلے کے دکانیں نہیں کھولتے, کس لیے؟ اور یہ عید والے دن گوشت کی یہ جو ہرس ہے, یہ ہوس ہے, اس میں اچھے بھلے کھاتے پیتے لوگ جن کے لیے کوئی مطلب گوشت کھانا کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے, وہ بھی اس میں ملوث پائے جاتے ہیں, یعنی اسی ہرس اور ہوس کا مظاہرہ کرتے ہیں. پتہ نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ مطلب کئی صدیوں کی بھوک ہے جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی. اور علاقے میں جو غریب مسکین لوگ ہوتے ہیں نا, یہ جو ہم کہتے ہیں کہ غریبوں کا ایک حصہ نکالنا ہے, وہ حصہ پتہ کون سا ہوتا ہے؟ غریب کے حصے میں بیچارے کے 2 بوٹیاں اور 7 نیچے چھڑے آتے ہیں. اس سے بھی بدتر بعض دفعہ یار. اور جب ہمارے بہن بھائی اپنی قربانی کے گوشت کے حصے کر رہے ہوتے ہیں نا, ایک رشتہ داروں کا, ایک غریبوں کا اور ایک اپنا, اس وقت پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ کون بیچارہ کتنا کم ظرف ہے اور کون کتنا ظرف والا ہے. وہ جب پٹ کی بوٹی اپنی طرف کر رہے ہوتی ہیں یہ, اور رشتہ داروں کی طرف سینے والی بوٹی, اور غریبوں کی طرف
पल्ले वाली बोटी। भाई सीधी बात है कि पूरे जानवर के 3 हिस्से करने का हुक्म है ना, 3 हिस्सों में तकसीम किया जाए, तो उसका आसान तरीका ये है कि पूरा गोश्त बनाकर उसको मिक्स कर दिया जाए। उसके बाद हिस्से किए जाए, ना कि बकरे के हिस्से अलग-अलग देखा जाए कि ये हिस्सा अच्छा होता है। अच्छा, एक और बात ईद वाले दिन तुमने देखी होगी कि जिन घरों में 2-2, 3-3 बकरे भी ज़िबा होते हैं, वो अपने उन रिश्तेदारों को गोश्त भेज देते हैं जिनकी तरफ से उतना ही गोश्त इन रिटर्न आपको आ जाना होता है। तो सिर्फ गोश्त का तबादला होता है। उसकी बजाय अगर आपका जो हिस्सा जो आपने अजीज रिश्तेदारों में तकसीम करना है, आप तकलीफ करके, तरद्दुद करके, एहतमाम करके अपने इर्द गिर्द उन रिश्तेदारों को, उन अजीजों को तलाश करें जिनको मतलब कम गोश्त खाना नसीब होता है। कुर्बानी का जो मकसद है वो ज्यादा आसान अंदाज में पूरा हो सकता है। इसी तरह गरीबों का हिस्सा निकालते हुए भी ये जो प्रोफेशनल फकीर हैं जो घरों में जा जाके पूरे लड़ के गोश्त लेते हैं, तुम्हें पता है ये होटलों पे बेच देते हैं, होटलों पे बेच देते हैं या गोश्त खुश्क करते हैं। हाँ, वो गरीब का हिस्सा निकालते हुए भी आपको उसके बाद वो हिस्सा उन लोगों में तकसीम करना चाहिए, पहुंच के तरद्दुद करके जो वाकई गरीब और जिन बेचारों को गोश्त खाने को कभी नहीं मिलता। और इसलिए ना हम फकीरों में क्यों तकसीम कर देते हैं? इसलिए कि हम तकलीफ नहीं करना चाहते ना, वहीं बैठे बैठे तकसीम करना चाहते हैं। हाँ, और ये तकलीफ से मुझे याद आया कि कुर्बानी के बाद जो उसकी बकरे की आलाइशें होती हैं, वो भी तरद्दुद करके कहीं जाकर डस्टबिन में फेंकनी चाहिए, जहाँ गवर्नमेंट ने कहा है वो वहां पे फेंके। यार मैंने गुजरांवाले की नहर में वो जरियां गिरी हुई देखी। और यार मुझे गुजरांवाला के जिक्र पे याद आया, तुमने परसों जब हम गुफ्तगू कर रहे थे मुख्तलिफ तामीराती मंसूबों के हवाले से, तो तुमने गुजरांवाला के ख्याली पुल की तामीर का जिक्र किया था कि उसमें खुर्रम दस्तगीर साहब प्रॉपर अंदाज में यानी विजिलेंट नहीं है और उसकी तामीर में कोई दिलचस्पी नहीं जाहिर कर रहे। तो मुझे गुजरांवाला के बहुत से लोगों ने खास तौर पे फ़ोन करके तवज्जो दिलाई है कि वो जो हल्का है वो खुर्रम दस्तगीर साहब का हल्का नहीं है और प्रोजेक्ट वफाकी हुकूमत का है। और दूसरा ये कि वो इम्तियाज सफदर वड़ायत जो वहाँ से पीपल्स पार्टी के रुकने कौमी असम्बली हैं, ये उनका हल्का है। चलो यार, लोगों को तो पुल चाहिए भाई जी। इम्तियाज सफदर वड़ायत साहब आप बनवा दें जनाब गुजरांवाला ख्याली वाला पुल। वैसे आपने शहबाज शरीफ के साथ बयानात का आडा लगाया होता है, तामीरात का भी आडा लगाए ना जी। नाज़रीन, ये हम लेते हैं छोटी सी कमर्शियल ब्रेक। फीके ये क्या कर रहे हो यार? मेरे दोस्त कहते हैं फीके टीवी पे ठीक होके बैठा करो। अच्छा। हाँ, कहते हैं सारे देख रहे होते हैं तो तुम ऐसे ही फजूली होके बैठ जाते हो। तो क्यों हाथ क्यों बांधे हो? सर्दी लग रही? नहीं हाँ। वो मैं पट्टे उठा के आया हूं ना, तो इसलिए अच्छा, हाथ गंदे हैं। तो तुम कुर्बानी कर रहे हो? नहीं, वो मैंने पट्टियों का फटा लगाया हुआ है अपने मोहल्ले में। अच्छा, तो फिर तो आजकल खूब चांदी होगी तुम्हारी। नहीं, चांदी नहीं, पट्टे। पिछले ईद पे भी मैंने पट्टे लगाए थे ना, तो 2800 रुपया मैंने कमाया था। अच्छा। हाँ, फिर अम्मा ने सेवियां भी पका के मुझे खिलाई थी और मैंने अपनी बहन नन्नी को ईदगाह पे जाकर तो झूले भी दिलाए थे। बड़ी ईद पे सवैयां पकाई थी। अम्मा कहती थी कि सेवियां खा लो तुम। सिर्फ 2800 रुपया कमाया था इसलिए। अच्छा। और अभी तक कुछ बनाया है? अभी कुछ पैसे बने हैं कि नहीं बने? मेरे? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। आजकल जरा मंदा है। क्यों? कल मैं 1500 के लेके आया था पट्टे। अच्छा। तो वो सारे बासी हो गए, सारे पट्टे उल्लू के पट्टे लगने लग गए। मेरा दोस्त है ना जो बाला, वो कहता है इस दवा इसलिए मंदा है कि लोगों इधर चाइना के बकरे आ गए हैं लोगों के पास, वो पट्टे नहीं खाते। आपने बकरे लिए हैं? हाँ, लिए हैं मैंने। तो आप मुझे अपना एड्रेस दे दो, मैं खुद पट्टे छोड़ आया करूंगा, तुम ले लिया करो। तो तुम तो बता रहे हो कि वो बासी हो गए। तो तुम्हें ही बताया है ना, तुम बकरों को नाम बताना। वैसे ही खा लेंगे वो। बकरों को कौन सा पता चलता है? मुझे भी तो अम्मा
बासी सालन दे देती है बगैर बताए, मैं खा ही लेता हूँ ना। तो तुम्हें भी नहीं पता चलता? नहीं, मुझे पता चल जाता है, फिर मैं कहता हूँ कि मैं कहूँगा कि मैं नहीं बासी सालन खाना, तो हो तो है ही नहीं, तो फिर अम्मा बेचारी परेशान हो जाती है, कहती है और पुत्र मैं तेनू कितों लिया के दिया। फिर मैं मजे ले लेके उसके सामने खाता हूँ, आए बड़ा मजा। मैं कहता हूँ मेरी अम्मा तो ना फिर बेचारी हमें रोने लग जाती है। अच्छा वीके, ईद पे तो तुम्हें गोश्त खाने को मिलता होगा ना? हाँ, वो हमारे मोहल्ले में सिर्फ मलक साहब ही करते हैं। इस दफा भी उन्होंने 4 बकरे लेके आए। अच्छा। हम क्या सबके घर बेचते हैं, तो कहते हैं उन सारिया देना होंगे, फिर की करिए। तो हमारे घर भी 3-4 चर्बी वाली बोटियां बेच देते हैं। अच्छा। अम्मा कहते हैं इससे अच्छा तो ना ही बेचा करे, तो अम्मा कहते हैं ऐसे नहीं कहते हो, उसने सारे मोहल्ले को चलो देता है बेचारा। कहते हैं बेचारा आप चंगा चंगा रख लेंगे तो हमारे घर वो वाला। फिर मुझे भी अम्मा बोटी देती है उसमें से। अच्छा वीके, एक बात बताओ, कभी तुम्हारा दिल किया है कि तुम भी कुर्बानी करो? एक दफा हमने कर ले ली थी कुर्बानी। अच्छा। मेरी अम्मा मामे के पेट से छोटा सा बकरा लेके आई थी। उधर मेरे मामे की बकरी ने बच्चा दिया हुआ था, उसने एक अम्मा को दे दिया था। तो उसका छोटा सा था, इधर मेरे बेटा रहता था, इतना बड़ा हो गया था। अच्छा। हाँ, मैंने अपने से कहा, मैंने कहा भाई इसको ईद पे हलाल कर लेंगे। मुझे भी बड़ा शौक है कि मैं मलकों के मुंडे की तरह मल्ले में गोश्त बांट के आऊं। तो अम्मा कहती है नहीं पुत्र रहने दे, इसको बेच के ना तो सेन में छोटा सा बोची खाना बना लेंगे, अंदर तेल वाले चूल्हे पे जब हांडी पकाते हैं तो सारे कमरे में तेल की बोई नहीं जाती। तो मैंने कहा कि कुर्बानी करती है, इसको बेचना क्यों है? तो अम्मा कहती है नहीं बोची खा नहीं बनेगा, तो बेची। अब बीमार हो गया। ओहो। तो न बोची खा न बनिया न कुर्बानी हुई। अब एक इलाज के लिए फिर बेच दिया था। मैं और बाला बेच के आए थे। अच्छा। बाला बड़ा सियाने, अम्मा कहती थी पुत्र बाले ना लेके जा। तो 13,000 का बेचा था उस वक्त। जब बकरे का रस्सी पकड़ाई है ना मैंने उस बंदे को, तो मैं घर आने लगा तो बकरा बेचारा मेरे पीछे बड़ा बैह बैह करता भागता था। मेरा बड़ा दोस्त बन गया हुआ था बकरा। 13,000 का ही बेच दिया। मैं क्या मत तू बना ला बोची खाना, सारा बेटा इलाज पे लग गया 13,000। कुर्बानी चाहिए रह गई। अब मैं मलकों का जब बकरा हलाल होते लगता है ना, तब मैं उसकी टांग पकड़ता हूँ जोर से। अच्छा। हाँ, मैं हलाल करता हूँ उसके साथ मिल के कचाई के। अच्छा फीके, बड़े बहादुर हो आप तो। हाँ, मलकोली तो कहती है ना, उनके मुंडे कहते हैं नहीं, हमारे ऊपर खून के छिट्टे पड़ जाते हैं, वो नहीं आते, मैं पकड़ता हूँ। अच्छा। हाँ, मैं पिछली दफा मैंने 4 बकरे पकड़वाए थे। अच्छा माशाल्लाह। हाँ, मैं बकरे की ऐसा टांग पकड़ कर जोर से हिलने भी नहीं दिया। फिर मलकों ने मुझे 2 बकरियों के पावे दे दिए थे। वो फिर हम लोगों ने पावे अम्मा ने खुद भून के पकाए थे। अच्छा। हाँ, पावे खाए ना तो हाथ जोड़ के दे ले। हाँ। अब्बा कहते हैं सारा साल गवर्नमेंट साडे को हाथ जुड़ा दिए, ते ईद वाले दिन पावे जुड़ा दे। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज। ले आओ 500।